Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exercise for class 10 science chapter 6 life processes. In this session we will solve question number 1 to question number 5 of page number 110 and question number 1 to question number 3 of page number 112. I will try to explain each question through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us begin the questions. पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे? What are the components of transport system in human beings? What are the function of these components? Human being में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या कंपोनेंट है और इन कंपोनेंट का क्या फंक्शन है? तो जो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स are the main components of transport system in human beings. Human beings में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन कंपोनेंट है. अब क्या है इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स एज पर हार्ट का क्या काम है? हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है थ्रू द आवर बॉडी, फिर रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड में इम्प्योरिटी हो उसको लंग्स में भेजता है फॉर अगेन ऑक्सीजनेशन एंड देन कंटिन्यूअस प्रोसेस गो ऑन. तो हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. इट receives deoxygenated blood from the various body parts and sends this impure blood to the lungs for oxygenation. ब्लड क्या करता है? हमारे अंदर जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्टेज. blood vessels, arteries and veins carry blood to all parts of the body. जो ब्लड वेसल है, आर्टरीज है, वेन्स हैं, ये क्या करते हैं? पूरे जो ब्लड को ऑल पार्ट में कैरी करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 2. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? मैमल्स और बर्ड्स में क्यों जरूरी है सेपरेट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्यों? क्योंकि मैमल्स के अंदर क्या होता है? वार्म ब्लड एनिमल्स हैं. मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वार्म ब्लड, जो इससे कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के रेस्पेक्टिव मेंटेन करते. मेंटेन करने के लिए उनको लॉट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो इसलिए उनको सेपरेट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो जरूरत पड़ती है, जिससे कि उनका जो वर्क है इफिशियंट तरीके से हो सके. तो मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल which keep their body temperature constant irrespective of the environment they live. This process requires lot of oxygen for moles cellular respiration, so that warm-blooded animals produce more energy to balance their body temperature. Hence, it is very important for warm-blooded animals to separate oxygenated and deoxygenated blood to keep their circulatory system efficient.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what are the component of transport system in highly organized plants? जो ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है उनके अंदर क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उनके क्या कंपोनेंट्स हैं? तो मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, जाइलम एंड फोलम। जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर को अलग पार्ट ऑफ द बॉडी वाटर एंड मिनरल सप्लाई करता है। फोलम ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से फूड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में सप्लाई होता है। That means there are two types of conducting tissues in highly organized plant that carry out transport system. First, xylem. Second, phloem. Xylem conduct water and minerals from roots to rest of the plant parts. Similarly, phloem transports food materials from leaf to other parts of the plant. Next question, fourth. Page number 108, question number 4. How are water and minerals transported in plants? वाटर और मिनरल प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? थ्रू जाइलम। जाइलम पार्ट्स, ट्रांजिट्स and vessel of roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel that reaches all part of the plant. जो जाइलम पार्ट्स है, ट्रेसिड्स है, वेसल ऑफ रूट है, स्टेम, स्लिप्स, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं जिससे कि एक वाटर कंडक्टिंग चैनल तैयार होता है जो ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में जाता है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स a suction pressure which forces water into xylem cells of roots. After this, there will be a steady movement of water from the xylem root to all part of the plant connected through conducting interconnected water conducting channels. तो कैसे जाता है? जाइलम पार्ट्स, ट्रेसिडी, जो रूट वेसल है, स्टेम सेल से सारे एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं जिससे एक कंटिन्यूअस चैनल तैयार होता है पूरे प्लांट में। अब ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, सक्शन प्रेशर होता है जिससे कि वाटर को जाइलम सेल ऑफ रूट में फोर्स कर। अब जब इसमें पहुंचता है तो वहां से एक मूवमेंट आती टू ऑल पार्ट ऑफ द कनेक्टेड, जहां से पूरे इंटरकनेक्टेड है उसमें वाटर की सप्लाई होती है। दैट मीन्स जाइलम पार्ट, ट्रेचेट्स एंड वेसल्स ऑफ रूट्स, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels that reaches all part of the plant. Transpiration creates a suction pressure which forces water into xylem cells roots. After this, there will be a steady movement of water from the root xylem to all part of the plants connected to conducting interconnected water conducting channels. Next question, question number 5. How is food transported in plants? प्लांट में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो प्लांट में वाटर जाइलम से, वाटर एंड मिनरल, और फूड फोलम से। Food is transported in plants by a special organ called as phloem. Phloem transports food materials from leaf to different part of the plants. Phloem फूड मटेरियल को लीफ से जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में है उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फोलम इज अचीव्ड बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ट्रांसपोर्टेशन जो फूड की फोलम में होता है कैसे होता है, उस एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी मीन्स एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी का करेंसी है, एनर्जी। दिस इंक्रीजेज ऑटोमेटिक प्रेशर इन टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव। जब ये होता है तो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इनकी जो, जिससे कि वाटर की मूवमेंट होती है। दिस प्रेशर मूव मटेरियल इन द फोलम टू द टिश्यूज विथ लेस प्रेशर। दिस इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एज पर द नीड्स। फिर जिससे कि सुक्रोज का पूरे उसमें ट्रांसपोर्ट होना। प्लांट में जो फूड क्या स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नियोफ्रांस। जो नियोफ्रान का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शनिंग है, उसको बताना है। तो नियोफ्रांस क्या है, किडनी का एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ नियोफ्रांस मिलके बनता है एक किडनी में। Nephrons are the filtration unit of the kidney, which are large in number. Some substance in the initial filtrate, such as glucose, amino acids, salts, and major amount of water, are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. तो जो न्यूफ्रॉन है, न्यूफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। कई न्यूफ्रॉन मिलके किडनी में, बहुत सारे किडनी होते हैं, जिससे कि क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और जो मेजर अमाउंट है सारे को ऑब्जर्व करके फिर यूरिन के थ्रू जो निकलता है। तो दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन। ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस, और ये बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल इसको बोलते हैं। दैट इज ए डिस्टल ट्यूबल, proximal tubule, loop of Henle, ये जो है कलेक्टिंग डक्ट। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ। तो मेन कंपोनेंट न्यूफ्रॉन का क्या होता है, ग्लोमेरुलस, जो ये है मेन कंपोनेंट। बाउमन्स कैप्सूल, दैट इज बाउमन्स कैप्सूल, दैट इज ग्लोमेरुलस, और लॉन्ग रीनल ट्यूबल, लॉन्ग ट्यूब, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नियोफ्रॉन्स। नेक्स्ट स्लाइड पे इसके फंक्शन क्या है वो समझते हैं। फंक्शन ऑफ नियोफ्रॉन, द ब्लड enters the kidney through the renal artery which branches into many capillaries associated with glomerulus। जो ब्लड है किडनी में एंटर होता है कैसे, थ्रू रीनल आर्टरी which branches into many capillaries। जो बाउमन्स कैप्सूल में वहां हमने दिखा बहुत सारी कैपिलरीज, मतलब बहुत छोटे छोटे, जिसको ग्लोमेरुलस के से एसोसिएट होते हैं। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द न्यूफ्रॉन्स एट बाउमन कैप्सूल। जो वाटर और सोल्यूट है वो न्यूफ्रॉन में ट्रांसफर होता है, कहाँ, एट बाउमन कैप्सूल जो है। इन प्रॉक्सिमल ट्यूबल some substance such as amino acid, glucose and salts are selectively reabsorbed and unwanted molecule are added in the urine। जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल है, जैसे कि जो प्रैक्टिस ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल है, यहाँ पे क्या है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट, इसको रीअब्जॉर्ब करता है, और जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स बचते हैं उसको यूरिन में ऐड कर देता है। The filtrate then moves down into the loop of Henle where more water is absorbed। जो ये फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाता है, लूप ऑफ Henle में जाता है, जहाँ पे एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं। फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट मूव अपवर्ड्स इनटू द डिस्टल ट्यूबल एंड फाइनली
to the collecting duct. And collecting duct collect urine from many nephrons. बहुत सारे जो न्यूफ्रॉन्स मैंने कहा ना कि बहुत सारे न्यूफ्रॉन्स होते हैं, उससे कलेक्ट करता है. एंड द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी इंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर. जो यूरिन है जो बीच किडनी से बनता है वो कहाँ कर फिर इंटर करता है, लॉन्ग ट्यूब जिसको यूरेटर बोलते हैं. फ्रॉम यूरेटर इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इनटू द यूरेथ्रा. आउट हो जाता है हमारे बॉडी से. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पेज नंबर 112 क्वेश्चन 2 क्या करें. व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. प्लांट हम क्या मेथड यूज करते हैं जिससे कि हम एक्सक्रीटरी प्लांट से लेते हैं. तो क्या प्लांट कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. प्लांट से जो एक्सेस वाटर है किससे, थ्रू ट्रांसपिरेशन. फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल. बहुत सारे जो डेड सेल होते हैं दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लिव्स. जब मर जाए तो छोड़ता है. मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सिल्वर vacuoles. वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. जो वेस्ट प्रोडक्ट भी जो लीव फॉल ऑफ होने उसमें भी होते हैं. अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स especially in old xylem. Plant also excrete some waste substance into soil around them. जो प्लांट से वाटर कैसे थ्रू बाय ट्रांसपिरेशन होता है. अदर जो वेस्ट मटेरियल है वो जो जैसे जो डेड सेल होते हैं जैसे कि लीव्स है, झड़का है, रेजिन और गम्स जो स्टोर होते हैं वो निकलता है. कुछ सराउंडिंग्स जो सॉइल है उसके थ्रू वेस्ट सब्सटेंस जो है एक्सक्रीट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड. amount of urine produced depends on the amount of excess water. कितना मतलब यूरिन का प्रोडक्ट्स होगा, कितना एक्सेस वाटर है. एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी. अदर फैक्टर्स मे बी environment and ADH hormone which regulate the production of urine. मेनली जो यूरिन को रेगुलेट करता है कितना प्रोड्यूस होगा वो मेनली किस पे, हमारे कितना एक्सेस वाटर है एंड हमारे बॉडी में कितना वेस्ट डिजॉल्व है. अदर फैक्टर इन मे बी एनवायरनमेंट एंड ADH हार्मोन व्हिच आल्सो रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का एक्सरसाइज एक है उसको करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे. आप जितनी बार रिवीजन करेंगे और ज़्यादा समझेंगे. तो आज यही समाप्त करते हैं. थैंक यू.